Good morning, student. I am Kulpreet Kaur, your SST teacher. Here, today we are starting a new chapter, Struggle for Equality, lesson number 8 of Civics. We will discuss here about social evils in our society and those who are struggle for this. We will discuss about all the reformers. Now, before starting the chapter, we will discuss here equality. What is the importance of equality in our daily life in our country? Equality is a very important in democracy, because democracy is the government of the people, by the people, for the people, as we all know. Equality is the essence of democracy. If people are discriminated against on the basis of caste, religion, gender, or prosperity, democracy will not survive. And as you know, student, India is a secular country. We all are living with different religions. We are living together. So many people in your society, somebody is Sikhism, belong to Sikh caste, Christian, Muslim, Hindu, Buddhism. You can see different religions of people in your society, in your country, and we all living together. We are following each other's religion. Sometimes we are celebrate festivals, others festival also together. So this is our nature. We all are one and living together. So this is your first slide. First slide, see here, the state of being equal, especially in status, rights or opportunities. What does equality mean to you? आप देख रहे हैं यहाँ पे different religions की पिक्चर है ना, कोई किसको बिलोंग करता है, कोई किसको बिलोंग करता है. Now, throughout the world, in every community, village, city and town, you will find that there are some people who are known, respected because of their fight for equality. Student, today we are following equality, fundamental rights, but ये जो equality है, ये जो peace है, इतनी आसानी से नहीं मिला हमें. इसके लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए हैं, और जिन्होंने, अगर हम हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए हैं और उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया है. दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रगल अबाउट लाइक स्ट्राइक्स, धरना, और बहुत तरीके के स्ट्रगल्स करने के बाद ये हमें पीस मिला है, ये हमें जस्टिस और इक्वालिटी मिला है. तभी आज हम डेमोक्रेसी को भी फॉलो करते हैं, है ना. Community, city, town, you will find that there are some people who are known, respected because of their fight for equality. These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or witnessed, or they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community. We are saying we all are equal, we all are living together, but we are respecting our dignity. We all know our self respect, our dignity is very important. और वो हमें किससे मिला है? वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी डिग्निटी को, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन किया है. क्योंकि अगर आप देखते हैं, अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि यू आर बिलोंग टू दिस रिलीजन, दैट रिलीजन, यू आर नॉट entered here because you belong to this caste या मे बी अनटचेबिलिटी. ऐसा कुछ नहीं है हमारे, अब ये सब नहीं है. लेकिन हिस्ट्री में ये सब पहले था. पहले लोग इस चीज़ को बहुत मानते थे कि आप कौन से रिलीजन से हैं, आप अनटचेबल तो नहीं हैं, तो आपको वहाँ पे नहीं बैठने दिया जाएगा जहाँ पे अपर कास्ट के लोग बैठते हैं. देखो, दिस इज थर्ड स्लाइड. हियर आर सम पिक्चर्स. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ही हैज़ फाइट फॉर स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, है ना. इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है. आप भी जानते हैं इनको क्या बोलते हैं, हम इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. तो ऐसे तो नहीं बोलते इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जिस चीज़ के लिए इन्होंने इतना फाइट किया है, एक्चुअली इन्होंने खुद इतना स्ट्रगल किया था, इसको रियलाइज़ किया था, क्योंकि ही वॉज फ्रॉम लाइक बैकवर्ड क्लासेस. वो बैकवर्ड क्लासेस से आते थे, इसलिए उनको पता था
इसलिए उन्होंने ये स्ट्रगल किया था कि क्या है कि ये जो हमारी इंडियन सोसाइटी है यहाँ पे ये हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने हमारे स्ट्रगल के लिए, जिन्होंने हमारी इक्वालिटी के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ये सोशल रिफॉर्मर्स ने हमारे इंडिया में पीसफुल लाइफ बनाने के लिए, सोसाइटी में इक्वालिटी बनाने के लिए बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं। अन्ना हजारे, यू नो दैट, महात्मा गांधी, ही इज कॉल्ड हरिजन्स ऑफ गॉड, है ना। मदर टेरेसा, ज्योतिबा फूले, उन्होंने सत्यशोधक एक समाज बनाया था जिसमें ये क्लियर था कि एनीबडी कैन एंटर दैट। उन्होंने एक सत्यशोधक समाज बनाया था ज्योतिबा फूले ने, जिसमें कोई भी कास्ट का कोई सा भी पीपल हो, कोई भी पर्सन हो, एंटर कर सकता है ना। दिस इज द वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल. Often some of these persons become more widely recognized people. They have the support of large numbers of people who have entitled to address a particular issue or inequality. In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. Here, हम अगर अपना हिस्ट्री देखें तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल कि there are several struggles in which people have come together to fight for issues. जब people वैसे कोई से भी रिलीजन से हो, लेकिन जब बात होती है जस्टिस की, इक्वालिटी की, तो हम सब साथ में आके, इकट्ठे आके, कलेक्ट होकर और एक होकर लड़ाई लड़ते हैं, है ना. इंडिया में आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे. As we read before about methods used by women movement, yes, this is the one most evil in history कि वुमेन को भी अपनी इक्वालिटी के लिए, अपने जस्टिस के लिए, एक अपनी डिग्निटी के लिए सोसाइटी के अंदर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है ना. एज वी रीड बिफोर अबाउट मेथड्स यूज्ड बाय वुमेन्स मूवमेंट टू रेज issues of equality. The Tava Matsya Sangh in Madhya Pradesh, one of the great example, is another example of people coming together to fight for an issue, है ना. तवा मत्स्य संघ के पीपल, बैकवर्ड क्लासेस सब साथ में हो गए थे. उनका भी यही था इशू कि हमारी जगह हमारी है, कोई आगे उसको नहीं आके कवर कर सकता. There are many such struggles such as those you will study about in senior classes, this about Tava Matsya Sangh, such as those among beedi workers, fisher folk, agricultural laborers, slum dwellers, and each group is struggle for justice in its own way. चाहे मेथड किसी का कुछ भी हो, कोई भी किसी भी मेथड से लड़ रहा हो, कोई डेमोन्स्ट्रेशन करता है, कोई अलग तरह से धरने पे बैठ जाता है, कोई ये करता है कि भूख हड़ताल पे बैठता है, वॉट एवर पीपल were done, but they all want only equality, justice. There are some many attempts to perform by which people can have more control over resources. Dam. Here is the one more example. It is built across a river sites where one can collect lots of water. This forms a reservoir, and as the water collects, it submerges vast areas of land. This is a photo of the submergence caused by the Terai Dam in Uttarakhand. अब मोस्टली हर जगह आप क्या देखेंगे, रिवर्स को लेके हमेशा फाइटिंग होती है. किस तरह की फाइटिंग होती है कि रिवर ऑरिजिनेट कहाँ से हुई है और कहाँ पे जाके उसका एंड हो रहा है. तो हमेशा ये रहता है कि 2 और 3 स्टेट्स में इस बात को लेके इशू रहता है उधर के मिनिस्टर्स में कि हम भी इसका पानी ले सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल इन कोटा सिटी वी कैन सी कि यहाँ पे जो चंबल रिवर है उसको लेके हमारे MP मध्य प्रदेश के मिनिस्टर और राजस्थान यानी कोटा के मिनिस्टर में हमेशा ये इश्यूज हमेशा रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं कि ये यहाँ से ऑरिजिनेट हुई है, ये राजस्थान की है, ये MP के लोग इससे पानी नहीं ले सकते. तो रिवर को लेके, पानी को लेके हमेशा इश्यूज रहे हैं, हिस्ट्री में भी और प्रेजेंट में भी. दिस इज अ फोटो ऑफ शो सबमर्ज कॉज्ड बाय तेराई डैम इन उत्तराखंड. द ओल्ड तेराई डैम एंड 100 villages, some loyalty and some totally and some partially, were submerged by the dam.
नियरली 1 लाख पीपल वर डिस्प्लेस। और फिर फाइनली लोगों को क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है। जब नहीं होगा कोई सॉल्यूशन तो क्या करेंगे। रीज़न फॉर इनइक्वालिटी इन इंडिया, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है इनइक्वालिटी का, पॉवर्टी, रिलीजन, कास्ट, जेंडर। ठीक है, पॉवर्टी वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल। आप ये देखिए स्टूडेंट कि इनइक्वालिटी कहाँ आती है, रिच एंड पुअर में आती है, कास्टिज्म में आती है, कोई अपने आप को अपर कास्ट का मानता है, कोई नीचे कास्ट का मानता है। तो क्योंकि ये हम लोग अपने बर्थ के साथ कास्ट लेके नहीं पैदा होते, लेकिन हम जिस फैमिली में आते हैं, जिस रिलीजन के अंदर हमारा वो हुआ है बर्थ, हम बोलते हैं कि अब हमारा ये कास्ट है। नाउ जेंडर को लेके डिस्क्रिमिनेशन था, वुमेन्स को इतने राइट्स नहीं दिए जाते थे, वुमेन्स को डिग्निटी नहीं दी जाती थी सोसाइटी में, बट नाउ दिस इज नॉट अ still exist now. So many amendment in the laws you can see now, women also having dignity, equality in the society. Here are poverty का one of the great example। एक आप इस साइड देखिए, this is यहाँ पे आपको एक तरफ तो एक तरफ तो आपको दिख रहा है कि एक पिक्चर में हाउसेस बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं, है ना, दिस इज द एंड इन द सेकेंड पिक्चर पीपल आर लिविंग इन अ लाइक इन अपार्टमेंट। तो यहाँ की जो कंडीशन है और ये वाली जो कंडीशन है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे लोग रहते होंगे। इतना इजी नहीं है। इफ़ यू आर लिविंग नियर बाय टू ईच अदर यू विल फेस सो मैनी प्रॉब्लम। इफ़ यू आर लिविंग सेपरेटली लाइक इन द अपार्टमेंट्स, इन द हाउसेज, और अगर आपके हाउस में एक दूसरे से डिस्टेंस हो, सो यू विल लिविंग पीसफुली। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। आपने सुना होगा मेट्रो सिटीज़ में लोग चॉल में रहते हैं, चॉल में रहते हैं तो क्या पीसफुल लाइफ होती है? हाँ, दे आर लिविंग टुगेदर, दे आर लविंग ईच अदर, बट पीसफुल लाइफ नहीं होती, क्योंकि एक घर का पूरा शोर दूसरे घर में जाता है, और पानी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करनी पड़ती है, बिकॉज दे आर लिविंग इन द poor area. Okay, now this is the next slide. You can see here, wait, see here student, this is the slide. Someone got you Adidas instead of Nike, है ना। एक तो पिक्चर है जिसमें एडिडास या नाइकी को रिप्लेस कर रहा है। दूसरा पिक्चर है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पिक्चर में एडिडास नाइकी को रिप्लेस कर रहा है, या नाइक एडिडास को कर सकता है, दोनों ब्रांड है, यू कैन वेयर एनीथिंग। दूसरे पिक्चर में हम देख रहे हैं, देखिए दे ओनली हैव वन ब्रांड, उनके पास सिर्फ यही होता है, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है ब्रांड क्या होता है, उनको तो सिर्फ अपना पहनने के लिए कुछ भी चाहिए, और किस तरह का ये फुटवेयर है, किस तरह का ये स्लीपर है, बट दे आर पुअर, उनको इसमें भी रिलैक्सेशन मिलता है, वो इसमें भी खुश हैं। Here are so many religions because we are living in the secular country. As I have already told you what do you mean by secular. In India, it is the case that the poor consist of a majority of members of Dalit, Adivasi and Muslims and are often women. आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइनॉरिटी पीपल्स क्या होते हैं। हमारे इधर इंडिया में बहुत सारी माइनॉरिटी कास्ट है, और एक तरफ मेजॉरिटी एक पर्टिकुलर रिलीजन की भी है, जैसे हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, दे ऑल आर इन माइनॉरिटीज़। According to 2001 census data, women from 48% of the population, Muslim from 13% of the population, Dalit from 16% and Adivasis 8%. तो यहाँ पे सबसे कम परसेंटेज किसका है? आदिवासीज का, और 48% वुमेन फ्रॉम द पॉपुलेशन, 50% भी नहीं है। तो इतना ईजी है क्या? नहीं, यानी कि हमारे साथ कहीं ना कहीं अनजस्टिस तो है। मुस्लिम फ्रॉम 13%। नाउ बट ये सब के बाद भी आज गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने हमें इस तरह से इक्वालिटी दी है कि गवर्नमेंट ने हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, वहाँ पे भी सीट्स फिक्स हैं कि आना रिजर्व एससी का इतना सीट है, एससी के मेंबर्स आएंगे उसमें, एसटी के इतने आएंगे, ओबीसी के इतने आएंगे, इवन वुमेंस के लिए भी सीट फिक्स हैं कि कितने मेंबर्स वुमेंस दे कैन सेलेक्ट, है ना।
Over 1,500 persons attended a public hearing in Lucknow in 2001 to protest violence against women. Over 15 cases of violence were heard by a jury of eminent women who played the role of the judge. This people jury had highlighted the lack of support in the legal system who seek justice in such cases. एक पिक्चर में क्या दे रखा है आपको, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस सुना है आपने? यहाँ पे कितने केसेस आते हैं, 2001 का केस है ये, जहाँ पे हम ये सुन रहे हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो 2001 नहीं 2021 में भी है। बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं अपने सोसाइटी में। आपने देखा होगा कई बार डाउरी को लेके डोमेस्टिक वायलेंस रहता है, कभी आप ये देखते हैं सोसाइटी में बहुत तरह के वायलेंस है वुमेन्स के साथ। नॉट ओनली डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी से रिलेटेड है। लेकिन अब फ़र्क क्या आ गया है? फ़र्क ये आ गया है कि पहले जब वुमेन्स के साथ कुछ होता था वो उसके लिए आवाज़ रेस नहीं करती थी, अपनी वॉइस रेस नहीं करती थी, लेकिन आज वुमेन वॉइस रेस करती हैं। आज वुमेन्स लिटरेट होती हैं, वो हर फील्ड में आपको दिखेंगी नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए। यू कैन सी एनीवेयर, है ना। आपने तो पेट्रोल पंप पे, वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल, अभी आप कुछ टाइम पहले अगर आपने देखा हो तो पेट्रोल पंप पे तक वुमेन्स खड़ी होने लग गई हैं, पेट्रोल देती, मतलब ये सर्विसेज करती हैं। सो this is the very drastic change in the society. So for today that's all. We will continue in the next class. I think it is enough to understand. We will continue other evils of the society and the what is the change in the law. We will discuss about it, है ना, in our next class. I hope you all got it, my point. You got it, this topic. We will continue in our next class. Thank you and have a nice day, students.